Hi everyone, welcome to the class. नमस्ते. मेरा नाम है अर्पिता शर्मा. मैं हूँ आप लोगों की एजुकेटर. My name is Arpita Sharma. I am your educator and this is a very special class for all of you. This is the class number 3, right? I guess 3 or class number 4 on internal security series that we have started. And this is the demo version of the classes that I take on Unacademy Plus. जो classes मैं Unacademy Plus पर लेती हूँ ये उसी का demo version है. So if you are enjoying these sessions, this is how we teach on Unacademy Plus also. We give personal guidance to the students, one-on-one interaction, doubt clearing sessions, all the subjects plus optional. And right now Unacademy has also launched a very good combo for all of you, the GS plus optional combo, and we are giving the biggest discount. So you can see over here, आप इधर देख सकते हो that if you take the GS subscription plus the optional subscription together, अगर आप Unacademy Plus पर GS subscription लेते हो और optional साथ में लेते हो तो there is a heavy discount that we are offering. Both GS and optional will be prepared for all of you by the educators, top educators like Mrinal Patel sir, like Sudarshan sir, like Ayush Sanghi sir, he is also a chartered accountant, Dr. Siddharth Arora who is also a lawyer by advocate by profession. I am also taking the sessions, ठीक है. एंड इधर आप देख सकते हो अगर आप आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो और बढ़िया है. क्यों? बिकॉज यहाँ पर पर्सनल कोच मिल रहा है आप लोगों को. If you take the iconic subscription, it's very beneficial for all of you. You will be allotted a personal coach who will monitor your performance throughout and will coach you, will give you targets, will give you timeline, will give you schedule, timetable, strategy, etc. And mains QA practice sessions will also be there. तो iconic पे आप GS का सब्सक्रिप्शन ले लो और प्लस पे ऑप्शनल का, दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे, अगर आप प्लस पे सिर्फ ऑप्शनल लेते हो, GS प्लस ऑप्शनल इफ यू टेक ऑन Unacademy Plus 70,000 rupees is the fees. Plus if you take प्लस पे ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक का GS का सब्सक्रिप्शन, you will be getting a personal coach and 88,705. And over and above this you are getting 10% discount if you use the code Sharma20. अगर आप कोड Sharma20 यूज़ करते हो तो आपको easily 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है, ठीक है. सो द लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ Unacademy Plus एंड गेट प्रॉपर मेंटोरशिप, गेट ऑल योर डाउट सॉल्व, टेक कोचिंग एंड क्रैक इट दिस टाइम. आपका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा. क्लिक कर कर उस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है. लेट्स स्टार्ट द सेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड रोल ऑफ सोशल मीडिया. Now when we talk about cyber security, जब हम cyber security की बात करते हैं, what do you understand by the term cyber security? इस term का मतलब क्या होता है? Security means protecting. Security का मतलब क्या होता है? Protecting. So cyber security means protecting. Write it down. Protecting the cyber space. ठीक है? The cyber space. Now what is there on the cyberspace that needs protection भाई? What is this cyberspace? Cyberspace पे ऐसा क्या है जिसकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? We have critical information. We have critical information or critical data or critical information infrastructure, ठीक है. So we have to protect it. Now the next question is, okay, protecting cyberspace has critical information infrastructure, okay, but we are protecting it from whom? किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम इसे? कौन है भाई जो साइबर स्पेस में घुस के अटैक करेगा? We are protecting it from misuse. We are protecting it from damage, ठीक है. We are protecting it from economic spionage, right? तो कोई भी अपने पर्पस के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए किसी तरीके की जासूसी करेगा, उससे भी हम प्रोटेक्ट करेंगे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को. हैकर्स, यस, मॉलवेयर्स, ठीक है. वी आर प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंसीज. वेरी गुड. हम एक्सटर्नल एजेंसी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हैकर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं. This is the basic understanding of cyber security. UPSC has clearly mentioned in the syllabus that you need not do PhD in each and every subject. UPSC ने नोटिफिकेशन में बहुत साफ साफ बोला है भाई PhD करके मत आना, हमें आपसे PhD नहीं करानी. There are many students who say, ma'am, we have to study almost everything in UPSC. It's so vast. No.
They have given you general studies syllabus, general studies. You should have analytical understanding, basic understanding. आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. बस आपको डुबकी नहीं लगानी गहरे ओशन में, समुद्र में. आपको बस इतना पता होना चाहिए उसकी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग. क्यों, क्या, कैसे, कब, what, where, when, how. This understanding you should have. That is required in UPSC. So cyber security, please do not jump into the ocean. You have to understand what is cyber security, what are the protections which government is using to protect the information, what are the dangers in cyber security, and solutions. How can we protect cyber security, how can we enforce cyber security. Only these topics you have to understand. प्लस बैक इट अप विथ करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में जो चल रहा है उसके साथ सपोर्ट करना है अपने आंसर को. दैट्स इट. इज इट टफ? क्या आपको ये मुश्किल लगता है? जल्दी से बताओ. नहीं है ना टफ? तो अगर कोई डराए धमकाए कि भाई ये ऐसे ऐसे पढ़ना पड़ता है, यूपीएससी बहुत टफ है, नहीं है. ठीक है. If somebody tries to overwhelm you by the fact that UPSC is very tough, very vast, you have to master everything, no, just shut that person up and tell him that we are the future IAS officers. We need analytical understanding of each and every fact. PhD नहीं चाहिए. ठीक है. Point clear? So this is basic understanding of cyber security. Now the question comes, next question आता है. So now we have studied cyber security. Now the next definition that we should study is cyberspace. देखो, in this definition we saw protecting cyberspace. So what is this cyberspace? They can ask you, grill you about cyberspace in interview. वो आपको grill कर सकते हैं इंटरव्यू में कि भाई बताओ cyberspace क्या है. ठीक है. So we should know what is cyberspace. अगर हम cyberspace की बात करते हैं, what is cyberspace? It is a global domain. Write it down. It is a global domain. ठीक है. within the information environment, within the information infrastructure भी बोल सकते हो, environment भी कह सकते हो, within the information environment, consisting of interdependent network of इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर. आईटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसी डोमेन में ये एक इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट का ग्लोबल डोमेन होता है साइबर स्पेस, जिसमें सब तरीके की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है. वेयर इन ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड. इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, राइट, एनी मेडिकल हिस्ट्री, सब चीज़ें. आपकी मेडिकल हिस्ट्री भी स्टोर कर सकते हो साइबर स्पेस में. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑल्सो, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस इंफ्रास्ट्रक्चर? आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर. इट कैन बी इंटरनेट. आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब इंटरनेट भी हो सकता है. It can be telecommunication network also. It can be telecommunication network. ठीक है. और it can be any computer system. किसी कंप्यूटर में भी स्टोर हो सकता है. It can be any computer system also. ठीक है. It can be embedded processors also. कंट्रोलर्स ऑल्सो. कंट्रोलर्स भी हो सकते हैं, एम्बेडेड प्रोसेसर्स भी हो सकते हैं. इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम एटसेट्रा, वेर इन द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड. इट्स एन एनवायरमेंट वेयर ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड. दैट इज साइबर स्पेस. दैट इज वाई इट नीड्स प्रोटेक्शन. जब एक ऐसी जगह सारी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी तो उसको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है. इफ यू हैव स्टोर्ड ऑल द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल ऑफ द कंट्री और द पीपल ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, then it needs protection also because anybody can misuse it. अभी हम Facebook का केस देख रहे थे पिछले साल, right? We have seen Facebook, WhatsApp, so many data leaks have happened last year and plus this year also. कितने data leaks हुए हैं. तो that is why we need to make cyberspace more protected. ठीक है. Yes लोकनाथ, you can call it servers also. ठीक है. तो इसलिए हमें साइबर स्पेस को काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखना है. एंड नाउ डेज पीपल आर सो इंटेलिजेंट, ठीक है, कि वो कहीं से भी कोई लूप होल ढूंढ लेते हैं घुसने का, हैक करने का. पीपल कैन नाउ फाइंड आउट एनी लूप होल टू हैक दिस एनवायरमेंट. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो रहा है? यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया. ठीक है. साइबर स्पेस की डेफिनेशन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज व्हाट इज साइबर अटैक. अब ये साइबर अटैक क्या होता है? व्हाट इज साइबर अटैक? वी हैव हर्ड अबाउट दिस अ लॉट ऑफ टाइम इन द न्यूज़पेपर. साइबर अटैक हो गया, यहाँ ये सिस्टम में अटैक हो गया. व्हाट इज साइबर अटैक? नाउ हैकिंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ साइबर अटैक.
हैकिंग जो है वो साइबर अटैक का एग्जाम्पल है, बट इन द इंटरव्यू रूम इफ आई आस्क एक्सप्लेन व्हाट इज साइबर अटैक, व्हाट विल यू आंसर? नाउ वी हैव टू आंसर साइबर अटैक. सो व्हेन वी आंसर साइबर अटैक, इट इज नॉट जस्ट एन अटैक, ये सिर्फ एक अटैक नहीं है. इट इज अ, राइट इट डाउन, इट इज अ वेरी मलिशियस and deliberate attempt by an individual or by an organization also. ये organization की भी साजिश हो सकती है. to breach means to violate the information, to breach the information system of another individual or organization for some selfish profit or selfish motive. ठीक है, तो किसी selfish motive के लिए, अपने गेन के लिए, पर्सनल गेन के लिए जब आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के डेटा को वायोलेट करते हो, ब्रीच करते हो, दैट इज साइबर अटैक. पॉइंट इज क्लियर? नाउ द क्वेश्चन कैन कम, एनीबडी कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दिस साइबर अटैक? ये साइबर अटैक के पीछे मोटिव क्या होता है, ये समझाएं हमें. सो व्हाट विल यू आंसर? फर्स्ट मोटिव इज टू सीक, राइट इट डाउन, द फर्स्ट मोटिव इज टू सीक कमर्शियल गेन बाय हैकिंग बैंक्स. बैंक्स को हैक किया जाता है ना, तो उसके लिए क्यों हैक किया जाता है? फाइनेंशियल गेन के लिए, कमर्शियल गेन के लिए, बाय हैकिंग द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, फर्स्ट मोटिव तो ये हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. पॉइंट क्लियर? यहां तक पॉइंट क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट मोटिव. नाउ व्हाट इज द सेकंड मोटिव? अब सेकंड मोटिव क्या है? टू अटैक द क्रिटिकल एसेट्स ऑफ अ नेशन. नेशन के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पे अटैक करना, ये सेकंड मोटिव है. थर्ड मोटिव इज टू पेनिट्रेट इनटू both the corporate and military data, because military data is also stolen. ठीक है, to penetrate into both corporate and military data servers to obtain details, plans और इंटेलिजेंस. अब इस तरीके का जो हैक या अटैक है, ये कौन करता है? इस तरीके का अटैक जो होते हैं वो एनिमी नेशंस करते हैं. दीज काइंड ऑफ अटैक्स आर डन बाय द एनिमी नेशंस. ठीक है, द नेशंस विद हुम यू आर एट वॉर विद, जिनके साथ आप किसी तरीके के वॉर लाइक सिचुएशन में हो, या जिनके साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं. सो दोज आर द नेशंस हु ट्राई टू अटैक द इंटेलिजेंस सिस्टम ऑफ द अदर नेशन. ठीक है, आपके पास काफी एग्जाम्पल हो सकते हैं, चाइना हो सकता है, रशिया हो सकता है. रशिया और यूएस के बीच में भी काफी प्रॉब्लम्स रही हैं. राइट, पॉइंट क्लियर? नाउ नेक्स्ट मोटिव इज टू हैक साइट्स टू वायरली communicate a message for some specific campaign related to, इसका एग्जाम्पल आप दोगे मुझे, related to politics and society. Now give me the famous example. लास्ट ईयर ही न्यूज में था, उससे पहले भी न्यूज में था, 2016 में भी न्यूज में था. What can be the example? Example can be the American presidential elections. Yes or no? To hack sites to virally communicate a message for some specific campaign related to politics and society. रशिया के ऊपर ब्लेम लग रहा था. Next example can be China's example, Pakistan's example. These are the examples that you read in news. यही तभी आपको current affairs पढ़ने हैं. All these topics ना which are in the syllabus, you have to link it with the current affairs. Only then you will understand them. Without linking with the current affairs, understanding will not come. ठीक है, point clear? That is why current affair reading is very important. चलो, let's move forward. Now there are different types of cyber attacks. Cyber attacks के बिना different types होते हैं. This is very important for prelims. ये आपके GS पेपर 3 के लिए भी और prelims के लिए भी important है. So what are the different types of cyber attacks? Let us understand that. समझ लेते हैं. पहला हो जाएगा malware. How many of you have heard about malware? कितने बच्चों ने मॉलवेयर के बारे में सुना है? सभी ने सुना होगा मॉलवेयर के बारे में, बचपन से सुन रहे हैं. सिंस क्लास 9th वी आर लिसनिंग अबाउट मॉलवेयर, राइट?
So what is malware? It is a short form of, write it down, it is a short form of malicious software. Malicious मतलब कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका जो मोटिव है बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है. Some kind of software whose motive is very dangerous, ठीक है, which is not good. So it is short for malicious software. It refers to, write it down, it refers to any kind of software that is designed to cause damage to a single computer or a server और अ कंप्यूटर नेटवर्क. या तो आपके सिर्फ आपके कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए मॉलवेयर प्रिपेयर किया जाता है, या एक सर्वर को डैमेज कर सकता है, या कंप्यूटर नेटवर्क को डैमेज कर सकता है. इट कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द कंप्यूटर नेटवर्क. एंड व्हाट कैन बी द एग्जांपल्स ऑफ मॉलवेयर? इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? स्पाईवेयर. एग्जांपल कैन बी स्पाईवेयर, कैन बी वर्म्स, ठीक है, कैन बी वायरसेस, ठीक है, इट कैन बी वायरसेस ऑल्सो, ट्रोजन्स ऑल्सो, ठीक है, और रैंसमवेयर ऑल्सो. दीज कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ मॉलवेयर. कुछ इस तरीके के सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को किसी तरीके का डैमेज पहुंचाएं, ठीक है, कि आपका कंप्यूटर वर्क ना कर पाए, पूरा फॉर्मेट करना पड़े, तो उसको हम बोलेंगे मॉलवेयर. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, एक और आपका साइबर अटैक का टाइप है. द सेकेंड टाइप ऑफ साइबर अटैक इज, इट इज नोन एज फिशिंग. ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिशिंग. सो नाउ व्हाट इज फिशिंग? अब ये फिशिंग क्या है ये देख लेते हैं. सो इट इज अ मेथड ऑफ ट्राइंग टू गैदर personal information using deceptive emails and websites. अब आपने देखा होगा फिशिंग में, अगर हम एग्जांपल देखें, यू मस्ट हैव सीन सम काइंड ऑफ स्पैम मेल्स दैट यू रिसीव. आपकी ईमेल आईडीज होंगी सभी की. इफ यू हैव रजिस्टर्ड ऑन अनअकैडमी, दैट मीन्स यू मस्ट बी हैविंग एन ईमेल आईडी, राइट? So there are so many spam mails that you receive. Click on this link, 5 lakh rupees will be credited to your account. Click on that link, you will win a ticket to go to Goa, or you will win a ticket to go to Las Vegas, right? आप में से कितने बच्चे क्लिक कर देते हो ये बताओ आप. How many of you click on those links? नहीं करते ना, चलो वेरी गुड. फ्रॉड होते हैं वो सब. ठीक है. नाउ रिसेंटली, because my father, he came in touch of technology few years back only. Before that he was not aware of the technological advancement, and he got an email telling him that you have won 1 crore rupees. ठीक है, you just have to click on this link, send your account details and the money will be credited to your account. ठीक है. And he called me. ठीक है, उन्होंने मुझे बुलाया. He told me I have received 1 crore. Now they are asking me to click on the link. I immediately deleted the mail. ठीक है, मैंने immediately मेल डिलीट कर दिया. And I explained it to him that these are all fraud things. If you have earned money with your hard work, only that money will be credited to your account. Okay? If the money is just being credited like that via an email, that is fraud. ठीक है, तो ये क्या है? ये fraud है. Plus my mother also received a message on her mobile phone. मैसेज आया, not email. ठीक है, तो एक मैसेज आया that now by sitting at home you need to work for only 1 hour and 50,000 per hour will be credited to your bank account. You have to give us the account details etc. Again I deleted that message, blocked that number. ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये बेकार है. आपको मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू भड़काने की कोशिश करेंगे, आपको ल्योर करने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, वो सब गलत है. मेहनत का पैसा ही रियल पैसा है, बाकी सारा माया. वैसे तो रियल पैसा भी माया है, बट मेहनत से जो कमाया है वो ही आपको मिलता है, वही आपको यूजफुल होता है आपके लिए. बाकी सारा जो पैसा है, जो आपको बोलते हैं ना 1 घंटे में इतना देंगे, एक गेम खेलो उतना देंगे, ये सब वेस्ट है. Now on certain websites there are ads also which show you a wheel, spinning wheel, and you click on it and then you will be receiving 1 lakh rupees or 50 lakh rupees, right, by just clicking on that spinning wheel. That is also fraud. वो भी fraud है. कभी click मत कर देना ऐसे spinning wheel पर. ठीक है. Yes, now तो direct calls, they are directly calling you. Last year a person called me and told me, ma'am, your HDFC debit card is not working nicely.
ठीक है, इट्स नॉट वर्किंग वेल, तो जस्ट गिव अस योर ATM पिन, हमें अपना ATM पिन दो एंड वील फिक्स इट. आई टोल्ड हिम आई डू नॉट हैव एनी अकाउंट इन HDFC बैंक ओनली, हाउ कैन यू आस्क मी द पिन, मेरे पास तो बैंक अकाउंट ही नहीं है HDFC में, आप मुझसे पिन कहाँ से मांग रहे हो. एंड देन आई रिपोर्टेड दैट नंबर, उस नंबर को मैंने साइबर सिक्योरिटी सेल में रिपोर्ट कर दिया कि भाई ये तो फ्रॉड है, पता नहीं किसको और कॉल करेगा, यहीं रोक दो. ठीक है, क्लियर हो गई बात. सो दीज आर द एक्टिविटीज विच आर गोइंग ऑन. डू नॉट टेल एनीबडी योर OTP, किसी भी बेकार की लिंक पे, वेबसाइट पे, यू नो, वो मत करो. कोई बोले हम RBI से कॉल कर रहे हैं, ATM पिन दो, मत देना. somebody who is calling you and telling you I am from RBI, I am from the headquarter, don't give him your pin, just abuse him and cut the phone and report that number. 2-3 गाली सुना दो, फोन कट करो और नंबर दे दो. ठीक है, क्लियर हो गई बात. yes, RBI never ask for OTP, ये तो ऐड भी चल रहे हैं. so this is phishing. now third important हो जाएगा DOS. now what is this DOS? ये तो नया सा लग रहा है. DOS क्या है? denial of service attacks. it is denial of service attacks. थैंक यू मैम साइबर कॉल के लिए. साइबर कॉल तो करना चाहिए भाई, रिपोर्ट कर दो. नाउ वी हैव डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक. ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स की जब हम बात करते हैं, व्हाट आर दीज? इट इज एन अटैक, राइट इट डाउन, इट इज एन अटैक which is meant to shut down a machine or a network making it inaccessible to its intended users. For example, if our intelligence agencies, they are trying to get any information on certain terrorist network, okay, the terrorist network or the terrorist organization, if it does the DOS, denial of service attack, it will shut down the network or machines of the intelligence agencies so that they cannot find out anything about their organization. Point समझ आ रहा है? ये इस तरीके का अटैक है. अगर आप किसी तरीके की करेक्ट इन्फॉर्मेशन किसी जस्टिस पर्पस के लिए निकाल रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए निकाल रहे हो, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? DOS अटैक कर देगी आपके सिस्टम पर, ताकि आपका मशीन या आपका नेटवर्क शट डाउन हो जाए थोड़े पीरियड के लिए, ताकि वो अपना काम कर सके, ताकि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को हाइड कर सके या अपनी इन्फॉर्मेशन को रिमूव कर सके. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी को? सो दिस अटैक इज अकम्पलिश्ड, दिस अटैक, DOS अटैक इज अकम्पलिश्ड बाय फ्लडिंग द टारगेट विद ट्रैफिक. ठीक है, और sending so much unnecessary information to the target so that their system will crash. okay, तो आप जिस काम के लिए नेटवर्क पे इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो या मशीन का यूज कर रहे हो, आप वो काम कर ही नहीं पाओगे, वो बीच में ही उस मशीन को क्रैश कर देंगे. पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको? यस, फेक ट्रैफिक, बाय जनरेटिंग फेक ट्रैफिक. ठीक है, दैट इज DOS. हमारी एजेंसीज भी DOS को यूज करती है. अगर कोई हमारी इंफॉर्मेशन को चुराने की कोशिश कर रहा है तो हम DOS का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. पॉइंट क्लियर हो रहा है? Now coming on to the fourth important type of attack, that is known as the MITM attack. Now what is this MITM attack? It is, write it down, man in the middle attack. इसका फुल फॉर्म है man in the middle attack. कितने बच्चे जानते हैं इसके बारे में? सभी लोग जानते हैं इस अटैक के बारे में. It is also known as the eavesdropping attack. ठीक है, अब ईव्सड्रॉपिंग क्या होता है? जब आप किसी की बात चोरी छुपे सुनते हो ना, कान लगा के, पेरेंट्स बात कर रहे हैं आपके बारे में, आपको पता चल गया, आप कमरे के बाहर खड़े होकर सुन रहे हो, आप ईव्सड्रॉप कर रहे हो. ठीक है, सो ईव्सड्रॉपिंग अटैक होता है एंड इट रेफर्स टू, इट अकर्स, राइट इट डाउन, इट अकर्स when the attackers insert themselves into a two-party transaction. मान लो फॉर एग्जाम्पल तेजस एंड दिनेश, दे आर ट्रांजैक्टिंग. ठीक है, एंड इफ शिवम wants to eavesdrop, that means he wants to know about this transaction, he wants to know how much money they are transacting with and he wants to steal that money, so he will eavesdrop. यानी कि दो लोग अपने आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और ये बीच में अपने आप को इंसर्ट कर रहे हैं इनके ट्रांजैक्शन में, तो ये होता है आपका MITM अटैक, मैन इन द मिडल. ठीक है, क्लियर हो गई बात?
सो फॉर एग्जाम्पल एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अ वेरी सिंपल लेमैन टाइप एग्जाम्पल आई विल टेल यू. इफ योर parents are talking with each other, your father and mother are talking with each other and you eavesdrop, आप क्या करते हो, कान लगा के यहाँ पर सुनने लगते हो क्या बातें हो रही हैं, ठीक है. तो आप थर्ड पार्टी हो, बीच में घुस रहे हो, तो वो ईव्सड्रॉपिंग हो गई. पॉइंट क्लियर. या आपके मान लीजिए दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, आप कान लगाकर सुन रहे हो कि क्या बात चल रही है, ठीक है. मैन इन द मिडिल अटैक. सो टू पार्टीज आर ट्राइंग टू ट्रांजैक्ट विद ईच अदर and what you are doing, you are trying to enter into that transaction without letting the two parties know about it. Why? Because your intention is to stop that transaction or to steal the money. आप बीच में घुसकर उस पैसे को या तो चुराना चाहते हो या ट्रांजैक्शन रोकना चाहते हो, ठीक है. सो वंस द अटैकर्स इंटरप्ट द ट्रैफिक, ठीक है, दे कैन फिल्टर, दे कैन स्टील डेटा. पॉइंट क्लियर हो गया. सो दैट इज मैन इन द मिडल अटैक. नाम से ही क्लियर हो गया कि क्या है ये अटैक. ईव्सड्रॉपिंग अटैक है, इसको याद रखना. आप किसी भी इंटरव्यू बोर्ड में इतना भी बोल दो ना ईव्सड्रॉपिंग अटैक, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल देम, ठीक है. पॉइंट क्लियर यहाँ तक. तो ये आपके 4 मेजर टाइप्स ऑफ अटैक्स हैं जो आपको याद रखने हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड. सो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी व्हाट इज साइबर. नाउ हमने पढ़ लिया साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक, ठीक है. तो यहां पर ये बताओ कि साइबर का मतलब क्या है. What do you understand by the term cyber? Cyber means anything related to virtual world. कोई भी जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, कोई भी चीज जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो साइबर है, ठीक है. दैट इज साइबर. एंड व्हाट आर द थ्रेट्स टू साइबर स्पेस. थ्रेट कैन बी, सी डिफरेंट सेक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड. मिलिट्री इज ऑल्सो कनेक्टेड विद the banking sector. Banking sector is also connected with military. Infrastructure, business, all these sectors are connected with each other. And if you try to attack using cyberspace, all the sectors, they are also going to be hurt. सारे sectors hurt होने वाले हैं अगर आप बीच में किसी भी sector में attack करते हो intentionally, ठीक है. Point clear हो गया. So increase in the number of exposure points, this is also the threat. अगर डेटा बहुत easily available, if the data is very easily available, exposure threat is also there. Concentration of assets, because as per Niti Aayog's report, threat to cyberspace have increased dramatically over last 10 years. जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है ना, थ्रेट भी बढ़ता जाता है, ठीक है. योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो एट रिस्क, बिजनेस इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो एट रिस्क, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. अब आप देखते हो व्हेन यू डाउनलोड एंड इंस्टॉल एप्स, दे आस्क परमिशन, येस और नो. जब आप एप्स, जोमेटो हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्विगी, एनी ऐप दैट यू इंस्टॉल, इट नीड्स दी permissions, right, that we can access your gallery, we can access your contacts, etc. that is also very dangerous. बहुत dangerous है. कोई भी गेमिंग ऐप डाउनलोड करते हो ना, इंस्टॉल करते हो, देख लिया करो कि क्या सोर्स है इस ऐप का. ब्यूटी फिल्टर ऐप डाल लेते हैं बच्चे, राइट. देयर आर मेनी गर्ल्स एंड इवन बॉयज आई हैव सीन दैट डाउनलोड एंड इंस्टॉल द ब्यूटी एप्स ऑल्सो, राइट. तो क्या करना है, ऐसे वैसे ऐप्स मत डालो जो बेकार हो. इनके सोर्सेज देख लो, किसने बनाया है, चाइना ने बनाया है कि इंडिया, मेक इन इंडिया है. टिकटॉक भी हो गया, ठीक है. पॉइंट क्लियर. यस, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट बैंड सो मेनी ऐप्स. इसलिए 56 ऐप्स के करीब गवर्नमेंट ने बैन किए थे, क्योंकि सोर्स जो है वो सही नहीं था, ठीक है. पॉइंट क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. द नीड फॉर साइबर सिक्योरिटी. नाउ साइबर सिक्योरिटी की जरूरत क्या है, वाई वी नीड प्रोटेक्शन. वी नीड प्रोटेक्शन. हमें क्यों प्रोटेक्शन चाहिए, साइबर अटैक्स के प्रति, डैमेज टू साइबर स्पेस रोकने के लिए, मिसयूज रोकने के लिए, इकोनॉमिक एस्पायोनेज रोकने के लिए. सो नाउ साइबर सिक्योरिटी अगर हम बात करें, साइबर सिक्योरिटी का एवोल्यूशन जानना बहुत जरूरी है. हाउ डिड दिस साइबर सिक्योरिटी स्टार्टेड इन इंडिया, दिस कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड इन इंडिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉ दी वायरसेस इन 1990s. फायरवॉल्स का नाम बहुत सुना होगा आपने, ठीक है, जो इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स का नाम आपने बहुत सुना होगा. जब हम छोटे थे, हमारे पेरेंट्स जो भी कंप्यूटर लैप, जो भी डेस्कटॉप पीसीज यूज करते थे, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जरूर डलवाते थे, ठीक है. सिंस 1990s दिस टर्म वायरस केम अबाउट, दिस इशू ऑफ वायरस केम, एंड फॉर दैट गवर्नमेंट लॉन्च्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल्स एटसेट्रा. Then the worms attack came in 2000 for which we started intrusion detection and prevention, ठीक है. Then came botnets, फिर बनते हैं botnets, आते हैं 2000 में. Again for that we use DLP, application aware firewalls, SIM. और हॉलीवुड मूवी में तो आप देखोगे इन्हीं के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मूवी बनी होती है. इन हॉलीवुड you must have seen, right, that there are hundreds of movies on these
साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, राइट. देन APT इंसाइडर्स, ये तो आज के टाइम में भी है APT इंसाइडर्स. फॉर दैट वी यूज नेटवर्क फ्लो एनालिसिस. ठीक है, तो ये एवोल्यूशन है. 1990s से जो काम शुरू हुआ है, ठीक है, वहां से अब तक प्रेजेंट तक आप देख सकते हो किस तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही हैं एंड व्हाट आर दी स्ट्रैटेजीज दैट वी आर यूजिंग इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज इश्यूज. इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है इसी के अंदर कि भाई ये बॉटनेट्स क्या होते हैं. द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस बॉटनेट. सो लेट अस अंडरस्टैंड बॉटनेट्स फर्स्ट. ठीक है, पहले बॉटनेट समझ लेते हैं. राइट इट डाउन. इट इज अ नेटवर्क ऑफ प्राइवेट कंप्यूटर्स, जैसे कि आपके पास होते हैं या आपके पेरेंट्स के पास या ऑफिस में होते हैं. प्राइवेट कंप्यूटर्स इन्फेक्टेड विद malicious software, infected with very harmful, malicious means harmful software, and controlled as a group without the owner's knowledge. यानी कि आपके कंप्यूटर पे ये बॉटनेट्स आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप जो कुछ कर रहे हो कंप्यूटर में वो सब उस सेकंड पार्टी को पता चलता जाएगा. For example, if you are doing net banking, whatever password, user ID you are in, typing, that second party will come to know about it through botnets and you will not be aware of it. आपको awareness ही नहीं होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा. Such infected computer, ये जो आपका कंप्यूटर होगा जिसमें botnets आ गए हैं, the computer in which the botnets will enter, that computer is known as a zombie. याद रखो इसको, prelims के लिए important है. Such kind of computers are known as zombie. And why botnets are used? To steal data. क्यों यूज होता है इसका? डेटा स्टील करने का. टू सेंड स्पैम, आपको स्पैम मेल्स आते हैं ना, क्लिक मत करना, गलती से डिलीट कर देना. डू नॉट क्लिक ऑन दी स्पैम मेल्स, स्पैम मैसेजेस. स्पैम नंबर्स को मत उठाया करो. नेवर पिक स्पैम नंबर्स, बिकॉज क्या होता है, वो 1 मिनट आपने उठाया, कुछ बोलते नहीं है और इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं. दे गेन एक्सेस टू योर मोबाइल फोन्स ऑल्सो. ठीक है, सो डू ट्रू कॉलर ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उससे पता चल जाता है कि स्पैम है या नहीं नंबर. ठीक है, so it's a combination of words, robot and network which attack your computer system and these attacks are currently also happening. ये attacks आज भी काफी ज्यादा हो रही हैं. ठीक है, yes अमोल. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है तो जल्दी से बताओ. ओके, नाउ हियर यू कैन सी DLP. ये DLP दिख रहा है. व्हाट इज DLP? DLP मीन्स, राइट इट डाउन, डेटा लॉस प्रिवेंशन सिस्टम. आपका जो भी डेटा लॉस हुआ है गवर्नमेंट उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करती है DLP सिस्टम से. ठीक है, दैट इज दिस सॉफ्टवेयर डिटेक्ट्स वॉट एवर डेटा हैज बीन लूजिंग एंड इट आइडेंटिफाइज द बॉटनेट्स एंड स्टॉप दैट बॉटनेट. अगर आप DLP अपने कंप्यूटर में लगा लेते हो तो इससे क्या होगा, ये प्रिडिक्ट कर लेगा कि भाई कौन सा बॉटनेट एंटर हुआ है, उसको वहीं के वहीं खत्म कर देगा. इट विल कैंसिल आउट द बॉटनेट देन एंड देयर ओनली, सो दैट योर डेटा इज प्रोटेक्टेड. ठीक है, पॉइंट क्लियर यहाँ पर? ओके, नाउ दी नेक्स्ट आपका हो जाता है द सिम. नाउ व्हाट इज सिम? सो वी हैव स्टडीड साइबर स्पेस ऑल्सो, वी हैव स्टडीड साइबर सिक्योरिटी ऑल्सो. हमने साइबर स्पेस भी पढ़ लिया, हमने साइबर सिक्योरिटी भी पढ़ लिया. पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इंडियन साइबर स्पेस की अगर आप बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन साइबर स्पेस, द नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, जिसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, ऑन दिस क्वेश्चन थ्राइस question has been asked on Indian cyberspace. It was set up as early as 1975 with the goal of providing IT solutions to government. So how to deal with this cyber attack, cyber security? The solutions are provided by NIC to the government. आपको क्या लगता है गवर्नमेंट के दिमाग में अचानक से आइडिया आ जाता है और फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं? No, we have many organizations, ministries, departments who are working to advise us, help us how to take decisions. So NIC is one such organization which was set up in 1975 to provide us with the IT solutions. ठीक है, how to deal with these cyber attacks. And between 1986 and 1988, 3 NWs were set up. ठीक है, आपके नेटवर्किंग से रिलेटेड 3 NIC नेटवर्क सेटअप हुए थे. NIC नेटवर्क्स मीन्स द नेटवर्क्स विच हेल्प यू टू प्रिवेंट साइबर अटैक्स. फर्स्ट वॉज इंडोनेट, connecting the IBM mainframe installations that made up India's computer infrastructure. जो आपके IBM installations है वो आपके computer infrastructure को मैनेज करते हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडोनेट तैयार किया गया. Then we had NICNet, the NIC network. It's a nationwide very small aperture terminal
फॉर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा को प्रोटेक्ट किया जाता है. कंप्यूटर सिस्टम्स आर प्रोटेक्टेड बाय निकनेट. पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? इफ द पॉइंट्स आर क्लियर प्लीज लेट मी नो. ठीक है, तो ये जो आपकी स्टेप्स हैं गवर्नमेंट ले रही है, दी स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग, इट इज टू प्रोटेक्ट नॉट जस्ट द कॉर्पोरेट people or their computer systems, but also the government departmental computer systems as well. Now here this is the report, this is the list of the cyber attacks in India. अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक में आपने साइबर अटैक्स पढ़े थे या नहीं? ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन ऑल्सो देयर वर मेनी साइबर अटैक्स. एवरीबडी वॉज वर्किंग फ्रॉम होम, सब लोग घर से काम कर रहे थे. एवरीबडी वॉज डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर्स, सब लोग कंप्यूटर पे डिपेंडेंट थे. इवन यू वर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर फॉर टेकिंग क्लासेस. ठीक है, तो इससे हुआ क्या कि लॉकडाउन में साइबर अटैक्स इंक्रीज हो गए. ये तो हैकर्स के लिए एकदम मोतीचूर के लड्डू वाली बात हो गई, उनको तो बैठे बैठाए डिजर्ट मिल गया. ठीक है, सो कोरोना वायरस पैंडेमिक based the cyber attack. Microsoft reported that cyber crooks are using COVID-19 situation in 2020 to defraud people through phishing and ransomware in India. We studied what is ransomware. It is a kind of malware. ठीक है, फिशिंग हमने पढ़ ली. तो आपकी पर्सनल डिटेल्स को स्टील किया जा रहा था. इन दिस लॉकडाउन पीपल वर ऑल्सो बीइंग एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, सो देयर डिटेल्स फ्रॉम द हॉस्पिटल वर ऑल्सो स्टोलन. ठीक है, देन वी हैड सीन द फिशिंग एक्टिविटी, फिशिंग अटैक इन 2016. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसके चपेट में आया था. WannaCry ransomware in May 2017. Various computer networks in India they were logged. ठीक है, by the hackers. डेटा थेफ्ट हुआ है, जोमैटो के साथ भी हो चुका है. It also faced the theft of data. Now when you install the Zomato app, they will ask you for your number, your location, your email ID. तो मिल जाती है ना सारी इन्फॉर्मेशन जोमैटो से भी. बहुत सोच समझ के हमें ऐप्स को डाउनलोड करना चाहिए. ठीक है, अगर इतना भूखे नहीं हो, ठीक है, इतने ज़्यादा तड़पन नहीं है बाहर का खाना खाने की, तो जोमैटो को मत ही करो इंस्टॉल. ठीक है, बट हाँ अगर लगता है कि हफ्ते में एक बार तो चलो बाहर का खा ही लेते हैं, तो जोमैटो को इंस्टॉल करके थोड़ा कर लो, रिस्क ले लो. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? यस, अमेजोन और आपको फ्लिपकार्ट से भी हो सकता है. These are the type of attacks, Petya ransomware. These are the type of Mirai botnet. We have studied botnet also, ransomware also. These are the attacks which we have seen currently. अभी इस तरीके के अटैक्स हमें देखने को मिले हैं. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया तो फटाफट से बताएं. Okay, so this was today's class, the most important topics in the cyber security that we have studied. Now आपकी जो next class होगी ना on internal security की जो next class होगी that will be on, I'll tell you the date, just give me a second, मैं आपका date बता देती हूँ कब होने वाली है. It will be on December 29th को होगी. Yes, it will be on December 29th. ठीक है, and the date is the time is 3 PM, 3 बजे होगी. ठीक है. Yes, thank you everyone. We are wrapping up the session. I hope you enjoyed the class. If you really did it, really enjoyed it, do not forget to like, share and subscribe. Thank you.